Assalamu alaikum guys. So welcome back. This is Sir Shafat Khan on your screen. Okay guys, so today we are gonna do this paper of Feb March 2018, paper 2 AS chemistry. Okay, so I hope you're all well and let's get started. Okay, so in the previous lecture we finished off 2017's winter variants, right? Paper 2 of winter 2017, and in this we are starting off with Feb March, and you guys know that it's 1 hour 15 minutes long, right? That's the time duration you will be provided, and let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. All right, so question 1 says the graph shows a sketch of first ionization energies of 6 successive elements in the periodic table. The letters are not the symbols of the elements. All right, so you've got these 6 elements over here, and these are the first ionization energies are given to you. All right, and then the questions have been asked related to this. So the first one has the highest ionization energy, then the second one has a lesser ionization energy compared to the first one, and then the third one again has a higher ionization energy. Remember, this is a trend, and then coming down and then going up and then going up. So there is an overall increasing trend with only 2 exceptions, right? B and B. So what do you think? Does it give you an idea of period 3? Period 3 or period 2? Yes, it does. Those 2 exceptions which are in there, right? Sodium, magnesium, and magnesium 2. Aluminum was an exception, and then phosphorus, sulfur were also an exception. Remember? We did this in class. Explain what is meant by the term first ionization energy. That's the very first question. So you need to explain it fully, right? So what was first ionization energy? Just a quick recap. First ionization energy, if you have a gaseous element over here, this is a gaseous element, this is an atom, and you provide it with immense amount of energy with heat such that it removes a mole of electrons to give you a univalent positively charged gaseous ion. This amount of energy that you have provided is known as the first IE, or first ionization energy. All right, so what is the first ionization energy? The amount of energy needed to remove 1 mole of electrons, the amount of energy needed to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of univalent positively charged ions. Okay, so this energy that we have provided to remove 1 mole of electrons from these atoms to form 1 mole of univalent positively charged ions is known as ionization energy, the first IE, or the first ionization energy. Okay, now part 2 says why the first ionization energy of B is much less than that of A. So you need to just suggest it, right? So let's just look at them first, A and B. So now you have to, for suggest type question, आपने क्या करना है कि आपने इसको compare करना है किससे? From your previous knowledge, right? मतलब B is less than A. ये कौन से में था? And then फिर उसके बाद D is less than C, right? So अगर आप इसे compare करें period 3 या period 2 से, तो period 3 से मैं इसे compare कर रहा हूँ, तो ये sodium और magnesium लग रहे हैं, magnesium and aluminum लग रहे हैं, right? This is magnesium and this is aluminum, right? So why was the ionization energy of aluminum less than that of magnesium? Well, the answer was hidden in its electronic configuration. Let's write down their electronic configuration. This is magnesium and this is aluminum. Aluminum's proton number is 13, and for magnesium it's 12. And if you write it down, it's going to be 1s2, 2s2, 2p6, right? And then 3s2. And then for aluminum, it's going to be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p1. So the outer shell electron of aluminum is in the 3p orbital, whereas the outer shell electron for magnesium is in the 3s orbital. So the 3s orbital is shielded by these electrons, by 10 electrons, whereas the outer shell electron of aluminum is shielded by a greater number of electrons. So this means it's better shielded, right? It is better shielded, better shielded. And since it is better shielded, therefore it's going to have
lesser energy would be needed to remove this electron, and so ionization energy of aluminum or B is going to be less than that of A. All right, so let's write it down over here. Now this is a higher orbital, so which is better shielded, so lesser energy, right? So B would have an outer shell electron in a higher orbital, therefore it will be better shielded. Than A, and since it is better shielded, lesser energy would be needed to remove the outer electron from B. Okay. Moving on to the next part, it says Pt are successive elements in periodic table, period 3 of the periodic table. The letters are not the symbols again. On the axis, sketch a graph to show the trend in atomic radius from P to T. अच्छा भाई ये P से T तक जो है ना आपको atomic radius शो करना है, और P से लेकर T तक, P to T कुछ है भी नहीं यहाँ पर. So these are some successive elements. अच्छा in the period 3 of the periodic table. ठीक है. So atomic radius का trend इसमें show करना है और explain your answer. So what happens to the atomic radius in general as you go from across the period? Across the period क्या होगा? भाई आप अगर सोडियम से ही स्टार्ट ले लेते हैं तो सोडियम का सबसे बड़ा रेडियस होता है, फिर सोडियम के साथ क्या कौन सा एलिमेंट होता है? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का रेडियस इज a bit smaller than sodium, and then aluminum is even smaller, and then it progressively shrinks, right, until it becomes very small. The reason why it shrinks is because the shielding effect is staying constant, but the proton number is constantly increasing, right? So the outer electrons are becoming more tightly attracted to the nucleus, so the electron density shrinks. So इसको बस एक decreasing trend आपने show करना है, ठीक है? इसका कोई specific shape नहीं है, because we've not done any shape in our syllabus, but ठीक है, इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा इसका भी, ठीक है? एक्सप्लेनेशन इसकी वही है कि शील्डिंग इफेक्ट इज कांस्टेंट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट इज कांस्टेंट. अच्छा ये मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आपने प्रॉपर आंसर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है? शील्डिंग इफेक्ट इज कांस्टेंट, proton number is increasing, so outer electrons become more tightly attracted, therefore electron density shrinks, ठीक है? बस यही आंसर है, आगे चलते हैं. Carbon 16 diamond are allotropes of carbon. Allotropes क्या चीज होती है भाई? Alternative forms of the same element. Describe the lattice structure of solid C60. C60 को आप क्या कहते हैं? बकी बॉल भी कहते हैं. Remember बकी बॉल में क्या होता है भाई? इसमें आपके पास पेंटागन्स और हेक्सागन्स होते हैं. The पेंटागन और हेक्सागनल और पेंटागनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? हर एक कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे से बॉन्डेड भी होता है, लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है ये एक सिंपल मोलेकुलर स्ट्रक्चर होता है. रिमेंबर, जिसमें एक सिंपल मोलेकुलर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी लो होता है, ठीक है? सो इट हैज अ सिंपल, एक तो ये लिखना है आपने कि सिंपल मोलेकुलर स्ट्रक्चर है, having regularly arranged C60 molecules. सारे पेंटागन और हेक्सागन रेगुलरली अरेंज होते हैं ना, तो इसलिए रेगुलर अरेंजमेंट होती है, क्योंकि फिक्स्ड
एक पेंटागन होगा और फिक्स्ड एक हेक्सागन होगा, इसे कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। और सिर्फ इन दोनों शेप्स के अलावा कोई शेप होगा भी नहीं, ठीक है। सो दैट्स द रीजन व्हाई इट हैज रेगुलर अरेंजमेंट। C60 sublimes at 800, diamond also sublimes only above 3800. Explain why C60 and diamond sublime at such different temperatures. Sublimation, भाई sublimation का लिंक तो इनके intermolecular forces से होता है। डायमंड में जो forces responsible होती हैं मेल्टिंग पॉइंट के लिए, कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं भाई? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, राइट, रिमेंबर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स क्यों होते हैं? क्योंकि डायमंड का कौन सा स्ट्रक्चर होता है? giant covalent structure होता है, alright, diamond has a giant covalent structure, GIANT, covalent structure, जिसकी वजह से it has strong covalent bonds and these covalent bonds are much stronger। और C60 मैंने अभी आपको बताया कि इसका तो सिंपल मोलेकुलर है। अगर ये सिंपल मोलेकुलर है तो इसमें मेजर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कौन सी होंगी? वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। वैन डर वाल फोर्सेस आर द वैन डर वाल फोर्सेस जो है वो मेजर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी एंड ऑब्वियसली दीज फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन दोज फोर्सेस, ठीक है। सो कोवेलेंट बॉन्ड्स are much stronger than VDW forces. VDW forces are very weaker. These are the weaker forces. And since they are stronger, these are stronger, so obviously more energy would be needed to overcome them because they require more energy. And if they require more energy, therefore more temperature, higher temperature at which they sublime. ठीक है, ये मैंने मेजर पॉइंट्स बस डिस्कस किए हैं, ठीक है। आपने आंसर की फॉर्म में खुद लिखना है, मैं पूरा नहीं लिख रहा। आगे चलते हैं। Part B says C60 forms hydrocarbons with similar chemical properties to those of alkenes. One such hydrocarbon is C60H18. What is meant by the term hydrocarbon? अरे तो ये इसका तो मतलब आपको पता है, any compound having hydrogen and carbons only, ठीक है। सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से जो चीज बनी होती है उसे क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन। A molecule made up of carbon and hydrogen only. Describe a test to indicate the presence of double bond, ठीक है। डबल बॉन्ड का कौन सा टेस्ट होता है भाई? ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, Br2 वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर कह दो, एक्वस ब्रोमीन कह दो, ब्रोमीन टेस्ट कह दो, जो कहना है कह दो, डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर इफ कार्बन ब्रोमीन वाटर if what? If double bond is present, ठीक है, ऐसा ही होता है। ये हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले, ठीक है। आगे चलते हैं। 0.144 gram of C60 was placed in 100 cm3 container of hydrogen gas at this pressure and stuff. Container was heated and these two reacted and there you go, you have the product. After the reaction, the container was allowed to cool to 20. ठीक है, फिर 20 पे वो cool हो गया, pressure decreased and all of the C60 had reacted. तो मतलब C60 क्या है भाई? आपका limited reagent है, क्योंकि ये सारा का सारा रिएक्ट कर चुका। So this is a limiting reactant. Name the type of reaction that is occurring over here. You've got C60 reacting with hydrogen forming C60H2X. ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है यहाँ पर भाई? आपके पास ये हाइड्रोजन आप ला रहे हो, इसके अंदर आप ऐड किए जा रहे हो, राइट। ये तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी हो सकता है, तो इसको आप हाइड्रोजनेशन कह सकते हो, या फिर आप इसको क्या कहोगे? C60 वैसे हमने यहाँ कहीं देखा था कि C60H18 में एक डबल बॉन्ड होता है, राइट। फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, C60H18, और यहाँ क्या है? C60 समथिंग है। तो ये बस हाइड्रोजनेशन कह सकते हैं, या फिर इसको आप एडिशन भी कह सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सही है। एडिशन और हाइड्रोजनेशन, एडिशन इसलिए कह रहे हैं कि हाइड्रोजन को आप ऐड कर रहे हो, राइट। अब रिमूव तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, सिर्फ आप ऐड कर रहे हो, ऐड किए जा रहे हो, सब्स्टिट्यूट तो कर नहीं रहे। तो एडिशन और हाइड्रोजनेशन, बट हाइड्रोजनेशन तो एल्कीन्स के लिए यूज होता है स्पेसिफिकली, तो एडिशन पे ही रहते हैं, ठीक है। इट्स एन एडिशन रिएक्शन। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ C60 दैट रिएक्टेड, ठीक है भाई। मोल्स कैलकुलेट करने, मोल्स का फार्मूला क्या है? मास ओवर एमआर। मास क्या है? 0.144, राइट, बाय एआर क्या है? 60 टाइम्स 12 होगा, 60 टाइम्स 12 होगा, बिल्कुल सही, 60 टाइम्स 12 ही होगा। आंसर क्या है इसका? 2 एक्सपोनेंट माइनस 4 मोल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट रिएक्टेड विद दिस। हाइड्रोजन गैस के मोल्स कहाँ से निकालें हम? हाइड्रोजन थी कहाँ पर? ये रही,
हाइड्रोजन गैस में क्या है 100 cm³ container है of hydrogen gas at 20 degrees Celsius and 1 exponent 5 pascals. The container was heated and hydrogen gas reacted. अब देखें ये हाइड्रोजन गैस एक्सेस में होगी, राइट? पूरी की पूरी तो रिएक्ट नहीं की गई होगी, राइट? So after the reaction, container was allowed to cool to 20. The pressure decreased to this much, 2.2 exponent 4. से क्या मतलब हुआ? अब देखें इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर में डिफरेंस है। इनिशियल प्रेशर ये रहा और प्रेशर मोल्स के गैस के मोल्स की वजह से होते हैं, राइट? 1 एक्सपोनेंट 5 था, अब प्रेशर डिक्रीज होकर 2.2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 हो गया है। देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ गैस रिएक्ट कर चुकी है, तो जो जिस गैस ने रिएक्ट किया है ना वो हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? सो इसको हम पहले तो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। PV equals nRT would be the formula that we'll be using here, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर सब कुछ देखिए सारे पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं, तो दैट्स द बेस्ट फार्मूला यू हैव टू यूज। वॉल्यूम आपको पता है, सब कुछ पता है, बस आपको क्या निकालना है? चेंज इन मोल्स निकालना है, राइट? तो मोल्स इक्वल्स मतलब जिस मोल्स ने रिएक्ट किया है, मोल्स इक्वल्स PV अपॉन RT होगा, राइट? PV अपॉन RT। लेकिन हमें PV अपॉन RT तो नहीं निकालना, हमें तो चेंज इन मोल्स निकालना है, राइट? चेंज इन मोल्स क्यों निकालना है? क्योंकि इनिशियल मोल्स जो थे, initially you had excess hydrogen and now you have the leftover hydrogen, so you need to find out the hydrogen that reacted, right? So you need to find out the change in moles, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तभी रिएक्टेड वाले आएंगे। तो चेंज इन मोल्स इसमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी चेंज हो रही है, वो है प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर V अपॉन RT, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है? तो चेंज इन प्रेशर आप लगा लें, ठीक है? प्रेशर फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल इसलिए करेंगे क्योंकि इनिशियल जो है वो ये वाला ज्यादा है, ठीक है? वरना नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, लेकिन खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नेगेटिव साइन को इग्नोर कर लीजिएगा। 2.21 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है भाई? 100 cm³ है ना, तो cm³ को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना भी जरूरी होता है, ठीक है? क्योंकि आप PV इक्वल्स nRT जब कर रहे होते हो तो सारे यूनिट्स जो है वो SI बेस यूनिट्स में होने चाहिए, ठीक है? सो सेंटी का मतलब होता है एक्सपोनेंट -2, तो ये एक्सपोनेंट -6 हो जाएगा, ठीक है? R is 8.31 and टेम्परेचर कितना है? 20 पे मेंटेन किया था, हाँ 20 से स्टार्ट और 20 पे लाके खड़ा कर दिया। अब 20 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि 20 + 273 हो जाएगा, बिकॉज SI यूनिट्स में यूज करना है हमें। अब इसका आंसर आ रहा है आपके पास 0.0032 मोल्स। आगे चलते हैं। Use your answers from 2 and 3 to deduce the molecular formula of this hydrocarbon, and if you are unable to calculate, assume that this blah 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 blah. All right. अब देखें 2 and 3 से को यूज करके हमें इसका मोलेकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। अब 2 और 3 में हमने कैलकुलेट किया क्या था? 2 में आपके पास कार्बन के मोल्स आए थे C60 के, 3 में आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स आ गए। अब ये दो मोल्स से आपने करना क्या है? अब देखिएगा गौर से, इक्वेशन पे आप वापस जाएं। You have this equation, C60 is reacting with X moles of hydrogen to give you C60H2X, right? मतलब 1 मोल जो है वो X के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो C60 के हमने कितने 2 एक्सपोनेंट 4 -4 जो है वो इसका रिएक्शन हमने कितने मोल्स के साथ करा है? 0.0032 के साथ, ठीक है? अब आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? अब ये X है ना, X के नीचे ये है और ये 1 और 1 के नीचे ये है, ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0032 इक्वल्स 2 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाइड बाय X। X की वैल्यू आ जाएगी 0.0032 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -4, जो क्या आ रहा है आपके पास 16 या 16 आ रहा है। X की वैल्यू 16 आ गई आपके पास, ठीक है? अब X की वैल्यू 16 आ गई, इसका फॉर्मूला क्या बन गया? C60H2X होता है, राइट? X की वैल्यू तो 16 है तो C60H32 हो जाएगा, 62 से 32, ठीक है? आगे चलते हैं।
सिलिकॉन शोज सेम काइंड ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर एज डायमंड। अरे भाई सिलिकॉन का पूछा हुआ है, सिंपल है, ठीक है। ये भी जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है और इसमें भी ईच सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 4 अदर सिलिकॉन आइटम्स। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो जॉइंट कोवलेंट होता है ये, और ईच सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू कोवलेंटली बॉन्डेड टू 4 सिलिकॉन आइटम्स। ओके, मैं सब मेजर पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आपने पूरे पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। Silicon reacts with magnesium, it forms this, and this is thought to contain Si4 negative ions. State the electronic configuration of Si4 negative ions. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले सिलिकॉन के प्रोटॉन नंबर का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो सिलिकॉन का प्रोटॉन नंबर होता है, एक सेकंड अब ये मुझे देखना पड़ेगा, 16 आई गेस होता है। 1 सेकंड, नहीं 14 होता है। डेटा बुकलेट खोल लेते हैं। अच्छा जी, सिलिकॉन का प्रोटॉन नंबर आपके पास है 14, ठीक है। SF4 नेगेटिव का मतलब ये है कि उस 14 में आपने क्या ऐड कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर दिए, मतलब 18 हो गया। तो 18 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होती है, 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 3p6 हो जाएगी। ऐसे 10 12 and 18 हो गया। आगे चलता है, सॉलिड मैग्नीशियम, ठीक है, क्योंकि इसके प्रोटॉन नंबर 14 होते हैं और इसमें 4 नेगेटिव का मतलब ये है कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 है। 18 की कॉन्फ़िगरेशन ये रही लिखी हुई है। अब गाइस ये जो AKU और NMD कैट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो कि AKU NMD कैट में टेस्ट होते हैं, ठीक है। एंड ये मैंने उनके लिए भी इसके नीचे AKU NMD कैट इसीलिए लिखा है बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर हेल्पफुल फॉर यू गाइस एज वेल, ठीक है। आपकी क्विक रिवीजन हो सकती है, आपको टेस्ट करने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आपको पूरा पूरा पेपर नहीं करना होगा, ठीक है। सिर्फ जो आपके काम की क्वेश्चन है वो करना है, ठीक है। सॉलिड मैग्नीशियम MgSi, ठीक है, reacts with dilute hydrochloric acid to form SiH4 is a solution of magnesium chloride. Equation to show solid, this thing is reacted with hydrochloric acid. अब ये क्या है, इसका ऐसा सीन है ना कि ये रिएक्शन अब दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द वन व्हिच वी हैव डन। सो Mg2Si, इससे मिलता जुलता लग रहा है ये। वेल ऐसा तो कुछ भी हमने किया नहीं है, लेकिन खैर इन्होंने प्रोडक्ट्स दे दिए हैं तो आई गेस वी कैन मेक एन इक्वेशन आउट ऑफ इट। दिस विल गिव यू silicon tetrahydride along with magnesium chloride solution MgCl2, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन और स्टेट सिंबल से बोला तो ये एक्वस कर देते हैं, सो गैसेस कर देते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो एसिड एक्वस होता है हमेशा, एंड ये खुद सॉलिड है, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं क्योंकि बैलेंसिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो 4 SiH4 है एंड 2 MgCl2 है, एंड आई गेस इट्स बैलेंस्ड, यप इट्स बैलेंस्ड, ओके यही है बिल्कुल। आगे चलते हैं। शेप SiH4 की शेप क्या होगी भाई, SiH4 की वही शेप होगी जो SiCl4 की होती है, राइट। कौन सी, मतलब टेट्राहीड्रल, ये SiCl4 कोर्स में है ना, ये पड़ा हुआ है।
ऐसा H4 reacts spontaneously with oxygen to produce a white solid and a colorless liquid. It turns anhydrous copper 2 sulfate blue. अच्छा ऐसा लिक्विड है जो कि एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट को ब्लू कर रहा है, मतलब क्या है, वाटर है ना ये, वाटर ही एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट में आप डालते हो तो ब्लू हो जाता है. Write down an equation to show this reaction with oxygen and state symbols are not required. So ऐसा H4 को जो है ना आप रिएक्ट करा रहे हो ऑक्सीजन के साथ तो एक व्हाइट सॉलिड बन रहा है. जो व्हाइट सॉलिड हमने SiCl4 का किया था वाटर के साथ, वो था SiO2. रिमेंबर, SiO2 इज द व्हाइट सॉलिड एंड कलरलेस लिक्विड, वाटर ही होगा, ठीक है, जो कि कलरलेस कॉपर 2 सल्फेट को ब्लू कर रहा है. अब इसको बैलेंसिंग इसकी भी कर लेते हैं, तो इसको 2 लगा लेते हैं एंड यहाँ पर भी 2 लगा लेते हैं एंड इट इज बैलेंस्ड. सही, आगे चलते हैं. क्वेश्चन 3 now. Calcium and its compounds are large variety of applications. ठीक है, इनकी बहुत लंबी वैरायटी है. ठीक है, आगे चलते हैं. Reacts readily with most acids. Write down an equation for calcium with nitric acid instead. ठीक है, तो calcium और nitric acid. Any reactive metal with an acid will give you the metal salt, calcium nitrate, and hydrogen gas. Balancing is important again. So, is it balanced? Yes, it is. When calcium nitrate is placed in dilute, sulfuric acid reacts vigorously first. After a short time, the crust of calcium sulfate forms on the calcium metal and the reaction stops. So here, some of the calcium metal and dilute sulfuric acid remain unreacted. State an explanation for these observations. अब भाई ये क्या हो रहा है? ये कह रहा है कि हमें बस कैल्शियम था, ठीक है, आपने उसे डाला सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड ने उसके साथ भाई धमाकेदार रिएक्शन किया. रिएक्शन के नतीजे में क्या हुआ कि कैल्शियम सल्फेट बना जिसने इस पूरे को कवर कर लिया. ठीक है, अब ये कवर करने के बाद ये कैल्शियम सल्फेट जैसे ही कवर करता है तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है. एंड इट इवन मेक सेंस क्योंकि कैल्शियम सल्फेट अब क्या है, ये तो सॉल्ट है, राइट. ये सॉल्ट ऑब्वियसली रिएक्ट थोड़ी करेगा, ना एसिड के साथ करेगा ना मेटल के साथ करेगा, ये तो प्रोडक्ट है. अब ये प्रोडक्ट जो है ये एक इंसुलेटिंग लेयर की तरह एक्ट करेगा एंड इट विल एक्ट एज अ बैरियर एंड प्रिवेंट द रिएक्शन टू प्रोसीड बिटवीन द मेटल एंड द एसिड. ठीक है, सो दैट्स द एक्सप्लेनेशन फॉर इट. कैल्शियम सल्फेट जो है वो इट डजंट, इट्स अ सॉल्ट, राइट, एंड इट वोंट रिएक्ट. ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट it is a salt that does not react with either with H2SO4. ठीक है, therefore acts as a barrier. ठीक है, prevent the reaction from proceeding. Calcium ethane diuate is formed when it reacts with ethane dioic acid. One cation and one anion. Dot cross structure of the cation present in ethane dioate show all electrons. Cation इसमें कौन सा होगा? कैल्शियम इथेन थायराइड में कैटायन पूछा है भाई, पॉजिटिव पूछा है, कैल्शियम है ना कैटायन. कैल्शियम का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो कैल्शियम का क्या होता है भाई, कैल्शियम 2 पॉजिटिव. कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैल्शियम में? 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड इन्होंने क्या बोला है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स शो करना है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ नहीं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स. फिर आप न्यूक्लियस ड्रॉ कर लें, फिर फर्स्ट शेल ड्रॉ कर लें, फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर सेकंड शेल ड्रॉ कर लें, सेकंड शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर थर्ड शेल ड्रॉ कर लीजिएगा, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आप ड्रॉ कर लें. अच्छा ये शेल को तो तमीज से बनाइएगा, ये मैंने अजीब सा बना दिया है. ठीक है, उस पूरे पे कौन सा चार्ज होता है भाई, 2 पॉजिटिव. कैल्शियम की बात हो रही है ना, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसलिए. आगे चलते हैं. Displayed formula of the anion in ethane dioate. अब ethane dioate C2H4O2 होता है, राइट. ये फॉर्मूला C2H04H2, C2O4H2 है एक्चुअली. और इस पे 2 नेगेटिव साइन होता है. इथेन डाइओएट का मतलब क्या होता है, ये इथेन डाइओइक एसिड से बना है. डाइओइक एसिड का मतलब ये है कि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड. इथेन का मतलब ये है कि 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन आपके इथेन के हो गए. और डाइओएट का मतलब ये है कि डाइओइक एसिड है. तो डाइओइक एसिड अगर आप बनाते हैं मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इसी पे बनाते तो ऐसे नजर आते, राइट. ठीक है, उसके आगे हाइड्रोजन लगे होते हैं, राइट. कार्बोक्सिल के 2 ग्रुप्स आ गए. अब इन्होंने कहा कि एनायन को ड्रॉ करें, तो एनायन जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है तो अपना ये वाला हाइड्रोजन लूज कर लेता है, राइट, जो ऑक्सीजन के साथ लगा है. तो ये दोनों आप रिमूव कर लो.
इन दोनों को आप रिमूव कर लोगे तो आपके पास एनायन आ जाएगा। ये एनायन जो आपके पास आया है इसी को कहते हैं आप इथेन डायोएट। सही है। और डिस्प्ले फॉर्मूला पूछा है तो मतलब उसके आप सारे बॉन्ड्स भी शो कर लो। ठीक है, तो ये को आगे चलता है। Calcium chlorate 1 is used as an alternative to sodium chlorate 1 in some households suggest a use for calcium chlorate 1. Sodium chlorate 1 का क्या यूज होता है? ब्लीचिंग एजेंट होता है, राइट? तो बस यही कैल्शियम क्लोराइड भी ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज हो सकता है। ब्लीच the chlorate 1 formed when cold aqueous sodium hydroxide reacts with chlorine। ionic equation लिखनी है भाई, cold सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन के साथ। तो कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का हमने एक रिएक्शन वैसे पहले भी किया हुआ है। ठीक है, मतलब क्लोरीन जब रिएक्ट करती है हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह मैं सिर्फ हाइड्रोक्साइड लिख रहा हूँ, तो प्रोडक्ट में आपके पास सोडियम क्लोराइड बनता था, राइट? सिर्फ क्लोराइड लिख लेते हैं उसका क्योंकि सोडियम तो स्पेक्टेटर होगा। ClO नेगेटिव बनेगा क्लोरेट अलॉन्ग विथ वाटर। सही है, बैलेंसिंग कर लेते हैं इसकी। तो दो H नेगेटिव यहाँ चाहिए होंगे क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ दो हैं और ऑक्सीजन भी दो हैं, होगी बैलेंसिंग। स्टेट सिंबल्स रिक्वायर्ड नहीं है। Chlorate 1 ion is unstable and decomposes when heated as shown. Reduce the oxidation number of chlorine in each species and complete the process. तो यहाँ पर तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है क्योंकि क्लोराइड है। यहाँ ClO3 नेगेटिव में क्या होगा, एक्स अज्यूम कर लेते हैं, ऑक्सीजन पे के 3 एटम्स है, हर एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, तो ये ओवरऑल चार्ज -1 है, राइट? तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6, वहाँ जाके +6, 6 - 1 +5, ये +5 है। ठीक है, आगे चलते हैं। In terms of electron transfer state, what happens to chlorine in reaction 3? reaction 3 है कहाँ पर, ये रहा। तो बताओ भाई क्लोरीन के साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का अपना +1 था, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, तो इट इज गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम। ओके, तो गेन्स एंड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम था डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Calcium lactate is used in some medicine and it is when lactic acid reacts with calcium carbonate, ये lactic acid दिया हुआ है आपको, इसको आप 2-hydroxypropanoic acid भी कहते हैं, राइट? क्योंकि 1, 2, 3 and second carbon पे OH लगा हुआ है, 2-hydroxypropanoic acid। Two other products when lactic acid reacts with calcium carbonate, तो obviously carbonate और acid करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी तो बनेंगे ना, सिर्फ सॉल्ट थोड़ी बनेगा। सही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी आपके अदर प्रोडक्ट्स हैं। आगे चलते हैं। इतना लंबा पेपर है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा, तीन तीन पेजेस हैं बस और, चलो इसको देख लेते हैं आप। Two possible methods of making lactic acid are shown over here। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड को बनाने की मल्टीपल सिंथेसिस टेक्निक्स हैं यहाँ पर यूज हो रही है। पहले वाले को आप देखो तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज है, 2 कार्बन का एक एल्डिहाइड मौजूद है। 2 कार्बन एल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो ये क्या हो रही है, एलोंगेशन हो रही है, राइट? आपने CN को ऐड किया। CN को कैसे ऐड करेंगे, एक एल्डिहाइड में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ी थी ना, उससे ऐड करेंगे HCN जब इसमें डाल देंगे। और फिर ये CN को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोलिसिस से करते थे हम, रिमेंबर, डाइल्यूट एसिड एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, और फिर नीचे से अगर आप आए तो यहाँ पर ये 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड है, ये अल्कोहल है, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल से आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसे कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब दिस इज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करते हो तो कीटोन बनता है। और ऑक्सीडेशन के बाद जब आप जाते हो अब इसको आपने क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है दोबारा से। वेट वेट वेट, सिर्फ ये नहीं बल्कि ये वाला जो अल्कोहल ग्रुप है ये भी कन्वर्ट हो गया, ये प्राइमरी अल्कोहल था तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया। अब आपने क्या किया, इसी कंपाउंड जो आपके पास बना है कीटोन वाला, इसी को आपने रिड्यूस करा दिया सिर्फ इस कीटोन के ग्रुप को। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कराया। सो दिस मींस यू मस्ट हैव यूज्ड अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कराने के लिए तो सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अलावा और कोई नहीं काम करेगा, राइट? तो आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लिया था, इसकी वजह से ये दोबारा से रिड्यूस हो गया, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप रिड्यूस नहीं हुआ। तो बस अब ये आपने रिएक्शन स्कीम बना दी जहन में, अब इसको सॉल्व कर लें। सुटेबल रिएजेंट्स एंड कंडीशंस पूछे हुए हैं 1 और 3 के। 1 के क्या है भाई, 1 में हो क्या रहा था, HCN एडिशन, राइट? तो 1 में ये था HCN along with सोडियम साइनाइड जो कि कैटलिस्ट होता है एंड हीट अंडर रिफ्लक्स।
ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर आपको नहीं पता हो, ये चीज हमने डाली थी, की थी मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। एक सेकेंड। रिएक्शन 3 में क्या हो रहा है? अच्छा, वैसे हीट एंड रिफ्लक्स इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है, इसको अगर आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद रिएजेंट्स कंडीशन स्टेप 3 के 3 में क्या हो रहा है? वो ऑक्सीडेशन हो रही है फिर से दोनों की, राइट? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करते हैं? अच्छा, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है जो कि अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को ऑल द वे टू कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दे, एल्डिहाइड में ना करे, ठीक है? K2Cr2O7 जो कि एसिडिफाइड होगा वो तो यूज करेंगे, लेकिन साथ में हीट सिर्फ नहीं बल्कि हीट अंडर रिफ्लक्स करेंगे। तो ये सिर्फ हीट करने से ये फिर वो कहीं बीच में रुक जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड पे। इन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन 2, रिएक्शन 2 ये रहा, हाइड्रोलिसिस हो रही है, सही है। Reaction 4 uses sodium borohydride, identify the role by reducing agent होता है ना ये हमेशा, reducing agent। Lactic acid has a chiral center. What is meant by the chiral center? आपको पता है क्या होता है भाई? Any carbon atom that is bonded to 4 different groups of atoms or atoms. So carbon which is bonded to 4 different atoms or groups of atoms, ठीक है? Atoms or groups of atoms, ठीक है? ये सारे की टर्म्स, ये जितने भी टर्म्स मैं लिख रहा हूँ ना, सारे की टर्म्स हैं, सबके मार्क्स हैं, ठीक है? कोई भी स्किप मत कीजिएगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आई गेस, फोर्थ, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसको भी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। साइक्लोहेक्सेन एक कलरलेस लिक्विड है यूज इंडस्ट्री टू सिंथेटिक फाइबर्स को सिंथेसाइज करने के लिए। रिएक्शन स्कीम दे दी भाई, मल्टीपल सिंथेसिस के पहले आपने क्लोरीन ऐड किया, तो ये क्या था भाई? ये आपके पास है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एल्केन एल्केन में, एल्केन ANE वाला एन में आप क्लोरीन को ऐड कर रहे हो, सही है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक्चुअली। फिर उसके बाद आपने उस क्लोरीन को एलिमिनेट करके क्या बना दिया? डबल बॉन्डेड एल्कीन बना दिया, सो एलिमिनेशन। सो ये रिएक्शन 1 इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसके एसेंशियल्स क्या है भाई? यूवी लाइट है, सेचुअल कंडीशन। अच्छा, पहला स्टेप भाई ये इनिशिएशन है, क्योंकि आपके पास मॉलिक्यूल से रेडिकल बन रहे हैं। फिर ये प्रोपगेशन में आपके पास और क्या चीज बनती है साथ में? एक सेल बनता है ना, ठीक है? अब भाई यहाँ पर ये कौन सा स्टेप है? प्रोपगेशन है, क्योंकि देखें आप, रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल और रेडिकल बन रहे थे, ये वही प्रोपगेशन की कॉपी यहाँ पर दूसरा स्टेप है। और टर्मिनेशन में आपके पास फाइनल प्रोडक्ट भी बन जाता है, ठीक है? और जहां पर ये देखें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, वहीं पर आपने क्लोरीन को अटैच कर लें तो ज्यादा अच्छा है, ना भी करें तो भी इतना इशू नहीं होगा। खैर, ठीक, आगे चलते हैं। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन 2। 2 कहां पर है भाई? ये रहा, एलिमिनेशन हो रही है ना, क्योंकि आप क्लोरीन को रिमूव कर रहे हो, ठीक है, और एल्कीन बना रहे हो। एलिमिनेशन आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, ये हमने वैसे कोर्स में की भी थी, ठीक है? अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, क्रैश कोर्स, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 2 इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है? साइक्लोहेक्सेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडिपिक एसिड। ये लो भाई, एडिपिक एसिड ये रहा। आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेन टू एडिपिक एसिड। ये साइक्लोहेक्सेन से एडिपिक एसिड में आप कन्वर्ट कर रहे हो, ये हो क्या रहा है यहाँ पर? अब आप अगर साइक्लोहेक्सेन को देखो गौर से, ये साइक्लोहेक्सेन में एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को आपने तोड़ा, इसको अगर आपने ऑक्सीडाइज किया, एल्कीन की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन की, ये टूटेगा, यहाँ पर भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, OH, और यहाँ पर आगे ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी एक OH और आगे ऑक्सीजन लग जाएगी, राइट? तो मतलब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन करके आप एडिपिक एसिड बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते, राइट? यही हो रहा है। तो रिएक्शंस एंड कंडीशंस क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, पोटेशियम मैंगनीज, एसिडिफाइड, concentrated and hot,
चाहिए होता है। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। Last but not the least, suggest three main differences between the infrared spectra of cyclohexane hexene and adipic acid. In each case, identify the bond responsible and its characteristic absorption range and wave numbers. अब देखिए इसमें जो है ना बड़ा सिंपल है, आप इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लो पहले, मतलब जो ऑलरेडी ड्रॉन है उनको देख लो। ये साइक्लोहेक्सीन है और ये आपके पास एडिपिक एसिड है, CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 और फिर एंड में आपके पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। तो ऑब्वियसली आपके पास इसके कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक होगी, उसमें नहीं होगी, पहली चीज। फिर आपके पास वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है, ये वाला एल्कीन का उसमें नहीं है, तो इसकी एक पीक आ जाएगी। एक कार्बोक्सिलिक एसिड की अपनी पीक आ जाएगी, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में दो चीज़ों की पीक आती है, एक तो OH की पीक आएगी और एक कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की आ जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। तो ये मैं आपके वेव नंबर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन में आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड आएगा 1500 से लेकर 1680 तक, ठीक है, वेव नंबर पर, बिकॉज ऑफ carbon-carbon double bond in cyclohexene, okay, which is absent in adipic acid. नहीं, हाँ बल्कि हाँ, देखिए इतना सिंपल है यार, मतलब P2 is literally a joke। मतलब अगर आपको अच्छा पेपर मिल गया, अगर मुश्किल आ गया तो it's आपकी किस्मत है, लेकिन लिटरली ये एक स्कोरिंग पेपर होता है, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन जो है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है आपके पास ये तो हो गई। फिर उसके बाद मैंने कहा कि एडिपिक एसिड में आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है उसकी 2500 से 2500 से लेकर 3000 पर सेंटीमीटर पर आपके पास किसकी पीक आएगी भाई, बिकॉज ऑफ OH ऑफ एडिपिक एसिड, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो थर्ड वाला है वो ये है कि आपके पास जो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसकी पीक आएगी 1640 से लेकर 1750 तक, ठीक है, ठीक, ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऑफ एडिपिक एसिड। अच्छा, इसमें आपने पी के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ना भी बताएं तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एडिपिक एसिड। ठीक है, आप अगर ये ना भी बताएं कि भाई स्ट्रॉन्ग पीक है, वीक पीक है, ब्रॉड पीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी वो सारे कुछ है वो नहीं बताना, बस पीक की पोजिशनिंग एक में प्रेजेंट है एक में एब्सेंट है, इससे ज्यादा क्लियर कट डिफरेंस और नहीं हो सकता। मतलब एक में प्रेजेंट है दूसरे में है ही नहीं भाई, अगर है ही नहीं तो फिर ये क्या स्ट्रॉन्ग और क्या ब्रॉड, समझे। So that's all guys, congratulations, so we finally finished off Feb March 2018's paper। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब भी ऑनलाइन आएंगे इंशाल्लाह उसमें इसके बाद वाला पेपर सॉल्व करेंगे एंड होपफुली आज के ही दिन में हो सकता है दोबारा आ जाए, ठीक है। So that's all guys, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, you guys can are free to ask it on in the comment section or you can contact me on Instagram if you need any of those recorded lectures, ठीक है।